Students, today we will discuss the next topic of chapter surface chemistry, that is the charge on colloidal particles. Student, we know that in colloidal solutions there are two components. One is dispersed phase, second is dispersion medium. This dispersed phase, it is also said to be colloidal particle. जो नॉर्मल टर्म है colloidal particle वो dispersed phase के लिए we can use. So these dispersed phase particles, these are charged particles. Suppose if the dispersed phase particle is negatively charged, then the dispersion medium is positively charged. And if the dispersed phase particles positively charged, then the dispersion medium is negatively charged, and as a whole the colloidal solution is न्यूट्रल इन नेचर. तो ये थिंग आपको बहुत अच्छी तरह क्लियर होनी चाहिए कि ये जो चार्ज है, दिस इज नॉट ऑन द कोलाइडल सॉल्यूशन, दिस इज द चार्ज ऑन द कोलाइडल particles, and the dispersion medium will have the exactly opposite charge, so that your colloidal solution will be neutral. Now आज के आर्टिकल में करना है क्या है, हमें फाइंड आउट करना है कि ये चार्ज आता किस वजह से है, why this charge originate, that is I have written the charge on a colloidal solution. और उससे पहले हम स्टडी करते हैं कि पार्टिकल्स पे कैसा चार्ज होता है. सो आई हैव ऑलरेडी मेड अ टेबल इन फ्रंट ऑफ यू, और ये मैं आपसे पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ इन द टॉपिक प्रॉपर्टीज ऑफ colloidal solutions. सो जो आपके पार्टिकल्स है, दीज आर ऑफ टू टाइप्स, पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड नेगेटिवली चार्ज्ड. सी वेरी इंपॉर्टेंट, hydrated metallic oxide just like Fe2O 3.xH2O, these are positively charged. Secondly, metal hydroxide FeOH thrice, also positively charged. Basic dyes just like methylene blue and Prussian blue, also positively charged. Fourth, oxides, titanium oxide and hemoglobin. These are the 5 example of positively charged colloidal particle. In the short बिल्कुल easy learn हो जाएगा. You will learn hydrated metallic oxide, मेटल हाइड्रोक्साइड, बेसिक डाइज, ऑक्साइड्स एंड हीमोग्लोबिन. इसको रिवर्स करोगे तो वहां पे जाएंगे आप. इन द नेगेटिवली चार्ज्ड जितने भी आपके मेटल के कोलाइडल सॉल्यूशन है, जस्ट लाइक सिल्वर, कॉपर, जिंक एंड गोल्ड. देन यहां पे क्या था बेटा, मेटेलिक ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स इन पॉजिटिवली चार्ज. नेगेटिव में क्या आ गया, मेटल सल्फाइड, जस्ट लाइक आर्सेनिक सल्फाइड. क्लियर. तो एक रिवर्स हुआ केस, जस्ट अपोजिट वी कैन से. In the positively charged we are having basic dyes, but in negatively charged we are having acidic dyes just like eosine and Congo red, and in the last macromolecule just like starch gum etc and etc. So this table you have to learn कैसे करेंगे, बिल्कुल सिंपल है. मेटल ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड पॉजिटिवली चार्ज्ड, मेटल सल्फाइड नेगेटिवली चार्ज्ड, बेसिक डाइज पॉजिटिवली चार्ज्ड, एसिडिक डाइज negatively charged. Clear to all of you? Hemoglobin positively charged, macromolecules negatively charged. So this table you have to learn it, very important. And now the today's article is how the charge is originated on colloidal particles. That is, I'll write the proper heading, origin of charge on colloidal particles. Origin of charge on colloidal particles. So beta we are having so many theories in the book, but जो latest है and appropriate हम use करते हैं, that is the you can say cause or origin is due to preferential adsorption of common ion from dispersion medium. Suppose I'll tell you one example. This is AB, this is your colloidal particle. Understand very carefully. ये बेटा आपका colloidal particle है. Clear? And AC is dispersion medium.
पॉइंट क्लियर हुआ? कोलाइडल पार्टिकल इज ए बी, ए सी इज द डिस्पर्जन मीडियम। ए बी को हम रिप्रेजेंट करेंगे ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, जैसे भी आपको करना है, ए सी ए पॉजिटिव सी नेगेटिव। अब ये जो आपका कोलाइडल पार्टिकल है ए बी, ठीक है, इसमें और डिस्पर्जन मीडियम में यू हैव टू सी द कॉमन आयन। देखिए यहां पर ए और बी आयंस हैं, डिस्पर्जन मीडियम में ए और सी आयंस है, तो कॉमन क्या हुआ? ए का कॉमन ए। तो डिस्पर्जन मीडियम से ए पॉजिटिव आयन, कौन सा? ए पॉजिटिव आयन इसकी सरफेस पर एड्सॉर्ब होगा जस्ट लाइक दैट, ए पॉजिटिव। एंड नाउ दिस विल बिकम द पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल। फर्स्ट एग्जांपल क्लियर? आपका पार्टिकल ए बी था, डिस्पर्जन मीडियम ए सी आया, कॉमन केटायन आया, केटायन एड्सॉर्ब हुआ और ये क्या हो गया आपका? पॉजिटिवली चार्ज्ड। आई टेक सेकेंड एग्जांपल इन दैट, इसी में चेंज कर लेते हैं। सेकेंड में चेंज क्या करना है बेटा? ए सी की जगह आई विल टेक, यू कैन से सी बी। क्या लिया मैंने? सी बी। नाउ इसको रब करते हैं सो दैट देयर इज नो कंफ्यूजन। नाउ सी द कोलाइडल पार्टिकल इज ए बी एंड द डिस्पर्जन मीडियम इज सी बी। नाउ ए बी, दिस इज योर कोलाइडल पार्टिकल। अब ए बी और सी बी कॉमन क्या है बेटा? बी कॉमन है, तो ए बी आपका कोलाइडल पार्टिकल, सी बी आपका डिस्पर्जन मीडियम, सी ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, सी पॉजिटिव बी नेगेटिव। ये बी नेगेटिव यहां से ए बी की सरफेस पर क्या होगा? एड्सॉर्ब दिस वे, बी नेगेटिव। नाउ दिस विल बिहेव लाइक अ नेगेटिवली चार्ज्ड कोलाइडल पार्टिकल। तो बिल्कुल सिंपल आई हैव रिटन ड्यू टू प्रिफरेंशियल एड्सॉर्प्शन ऑफ कॉमन आयन फ्रॉम डिस्पर्जन मीडियम। और ध्यान रखना है ए बी और सी बी में से डिस्पर्जन मीडियम वो पार्ट है विच इज प्रेजेंट इन एक्सेस, दैट इज ऑल्सो यू हैव टू रिमेंबर। So this is the cause. Now we have to do some questions so that we can identify what is the charge. So cause तो वन लाइन में हमने explain किया, but अब practical हम कुछ questions देखते हैं. Just see out. I'll do with the help of questions. You can say questions. Find out the charge on colloidal particles in following cases. We have to discuss in the following cases. So I'll discuss one by one. I just underline it. Find out the charge on the colloidal particles in the following cases. First one is, the first question is, when AgNO3 is added to aqueous Ki. This is the first part now. So what is given? When AgNO3 is added to aqueous Ki. याद कीजिए, जब हम किसी भी तरह का कोलाइडल सोल्यूशन बनाते हैं तो हम जो एक्सेस में प्रेजेंट हो उसमें दूसरी चीज ऐड करते हैं. यू विल ऑलवेज राइट शुगर एडिड इन वाटर. आप कभी ये नहीं कहते वाटर एडिड इन शुगर. यू विल ऑलवेज से शुगर इज एडिड टू वाटर. तो यहां पर AgNO3 इज एडिड टू एक्वस Ki. इट मींस जो आपका Ki है वो किस में प्रेजेंट है? एक्सेस में. और ये क्या हो गया आपका डिस्पर्जन मीडियम. दिस इज टू फाइंड आउट. बड़ा इंपॉर्टेंट है. या तो क्वेश्चन में गिवन हो कि एक्वस, काम चल जाएगा. नहीं गिवन है तो यू हैव टू अंडरस्टैंड फ्रॉम द स्टेटमेंट. व्हेन AgNO3 इज एडेड, तो जिसमें आप ऐड करो दैट इज द डिस्पर्जन मीडियम. नाउ सो जस्ट सी व्हाट हैपेंस. AgNO3 प्लस Ki, सिंपल रिएक्शन है बेटा. Ag पॉजिटिव, NO3 नेगेटिव, K पॉजिटिव, I नेगेटिव. अपोजिटली चार्ज्ड आयंस अट्रैक्ट ईच अदर. ये Ag पॉजिटिव किसको अट्रैक्ट करेगा? I नेगेटिव को. यू विल गेट AgI प्लस KNO3. दिस इज योर कोलाइडल पार्टिकल. और ये आपका डिस्पर्जन मीडियम है. इंपॉर्टेंट. यहां तक हो गया अच्छी तरह से. कोलाइडल पार्टिकल इज सिल्वर आयोडाइड. ठीक है ना.
एंड ये आपका डिस्पर्जन मीडियम. सो आई विल ड्रॉ AgI लाइक दैट. दिस इज AgI. नाउ अब बेटा इसमें थोड़ा इसको हटाते हैं. पोटेशियम आयोडाइड और AgI में क्या कॉमन है? यहाँ सिल्वर, यहाँ पोटेशियम, ये तो कॉमन होगा नहीं ना. तो यहाँ पर भी आयोडीन, यहाँ पर भी आयोडीन. तो डिस्पर्जन मीडियम से जो I नेगेटिव है वो यहाँ पर सरफेस पर क्या होगा? एड्सॉर्ब. I नेगेटिव. दिस इज द वे. I नेगेटिव. Now this will behave like a negatively charged colloidal particle. So first question is clear. When AgNO3 is added to aqueous Ki, the silver iodide of a negatively charged colloidal particle is formed. Clear? Now we'll shift to question number 2 now. Second part or second question. Same, we have to find out the charge. Second part. The second part is when dilute Ki is added to AgNO3 solution. Now बेटा see, हमें ये गिवन नहीं है कि विच इज प्रेजेंट इन एक्सेस. क्लियर? तो हम वही चीज जो पहले स्टेटमेंट थी, Ki को आपने AgNO3 में ऐड किया. सो AgNO3 इज द डिस्पर्जन मीडियम, दैट इज द कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन एक्सेस. कई बार क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन होता है कि AgNO3 इन एक्सेस, तो हमारा काम हो ही गया. इफ इट इज नॉट गिवन देन वी हैव टू फाइंड आउट. नाउ जस्ट सी Ki और वॉट एवर जैसे भी आपको लिखना, डजंट मेक एनीथिंग. AgNO3 प्लस Ki. सबसे पहले इसमें डिस्पर्जन मीडियम कौन है? AgNO3. राइट डाउन DM डिस्पर्जन मीडियम. नाउ द रिएक्शन Ag पॉजिटिव NO3 नेगेटिव, K पॉजिटिव I नेगेटिव. सो Ag पॉजिटिव कंबाइंड विद I नेगेटिव, सिल्वर आयोडाइड कोलाइडल पार्टिकल. सेकेंड इज KNO3. नाउ दिस इज योर कोलाइडल पार्टिकल. सो आई विल ड्रॉ सिल्वर आयोडाइड. अब सिल्वर आयोडाइड और डिस्पर्जन मीडियम में कौन सा आयन कॉमन है? जस्ट सी आउट. सिल्वर और सिल्वर, Ag कॉमन हो गया. तो डिस्पर्जन मीडियम से Ag पॉजिटिव आयन जो है बेटा, इट विल एड्सॉर्ब ऑन द सरफेस ऑफ दिस. सो यू विल गेट Ag पॉजिटिव, Ag पॉजिटिव, Ag पॉजिटिव, Ag पॉजिटिव. Now this will behave like a positively charged colloidal particle. So it depends on the statement what is given to you, and secondly which component is present in excess. Now we'll shift to the third case. We'll do two more examples for that. Third one is when ferric chloride is added to hot water. Next case. Now see the students, ferric chloride is FeCl3. Understand now? And it is added to hot water. So first of all, what is formed? Whenever a metal chloride is reacted with hot water, then what will I get? Hydrated metal oxide is formed. Fe2O3.xH2O. What is formed? Hydrated metal oxide. Now this is Fe2O3.xH2O. This is your colloidal particle. Clear to all of you? और इसकी सरफेस पर यहां से Fe और Fe क्या कॉमन है बेटा? Fe+3 ion. This Fe+3 ion gets adsorbed on its surface. That is, I will get Fe3 positive, Fe3 positive, Fe3 positive. This will become now positively charged colloidal particle. Clear? और इसको एक तरीके से और भी लिख सकते हैं. I can write Fe2O3.xH2O.
इस पे एड्सॉर्प्शन किसका है, Fe+3. सो दिस इज द वे टू राइट. जो हमने प्रीवियस एग्जांपल किए थे उसमें भी शो कर सकते हैं हम इसको, डबल डॉट और लाइन से भी इंडिकेट कर सकते हैं. इससे क्या पता चलेगा, ये आपका कोलाइडल पार्टिकल है एंड दिस इज योर adsorbed ion. Am I clear? Now we'll discuss the last example in this, fourth. Just see out. The fourth example is example number 4. Ferric chloride is added to NaOH solution. Now, when ferric chloride is added to NaOH solution, what will I get? I'll get the same one, hydrated ferric oxide, that is Fe2O3.XH2O. This is your colloidal particle. Fe2O3.XH2O. Now what happens, just see out the students. Here water means OH negative और यहाँ पर NaOH में OH नेगेटिव, कॉमन आयन OH नेगेटिव आया तो इसकी सरफेस पर जो एड्सॉर्प्शन होगा दैट इज ऑफ OH नेगेटिव आयन. OH नेगेटिव so this will behave like a negatively charged colloidal particle. So student, in this way we have see कि हम कैसे find out करें कि किस पे कैसा चार्ज है. So simple one line I have written, due to preferential adsorption of common ion from the dispersion medium. Okay, now in this sense और इसी में we will do one small article, that is Helmholtz double layer. Helmholtz double layer and electrokinetic or zeta potential. This is the article that is related to this one. Just see out, I'll take the example of this. हमें एग्जाम्पल से स्टडी करना होगा और एग्जाम्पल हम वही लेके चलते हैं. फर्स्ट एग्जाम्पल जो हमने स्टडी किया था अभी क्वेश्चन में, दैट व्हेन AgNO3 इज एडेड टू AgNO3 is added to aqueous Ki. क्लियर, जस्ट सो aqueous Ki में ऐड किया तो aqueous Ki जो है वो आपका डिस्पर्जन मीडियम है, ध्यान रखना इस चीज को. यहां से हमारी पहली डेफिनेशन आएगी हेल्महोल्ट्ज डबल लेयर. जस्ट सी आउट. सो AgNO3 प्लस Ki, व्हाट विल वी गेट बेटा, Ag पॉजिटिव कंबाइन विथ I नेगेटिव. दिस इज योर कोलाइडल पार्टिकल प्लस KNO3. सो ये आपका कोलाइडल पार्टिकल है और ये आपका डिस्पर्जन मीडियम है. दो चीजें माइंड में फिक्स कीजिए. विच इज द कोलाइडल पार्टिकल, सिल्वर आयोडाइड, एंड विच इज द डिस्पर्जन मीडियम, पोटेशियम आयोडाइड. सो जस्ट सी आउट, दिस इज AgI कोलाइडल पार्टिकल, वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, नाउ अब इन दोनों में कौन सा आयन कॉमन है, I नेगेटिव. तो Ki से, रिमेंबर डिस्पर्जन मीडियम इज Ki मीन्स K पॉजिटिव एंड I नेगेटिव. सो बेटा I नेगेटिव सरफेस पर एड्सॉर्ब होगा दिस वे. दिस I नेगेटिव इज adsorbed on the surface of colloidal particle. This is, you can say, the fixed layer. हम इसको क्या कहेंगे, this is the fixed layer of common ion on the colloidal particles. अब क्योंकि आपका डिस्पर्जन मीडियम तो एज इट इज पड़ा हुआ है. डिस्पर्जन मीडियम क्या है आपका, Ki डिस्पर्जन मीडियम में से I नेगेटिव तो सरफेस पर आ गया. अब I नेगेटिव यहां आ गया, बाकी सारा क्या बचा हुआ है, K पॉजिटिव. द होल इज K पॉजिटिव.
सो इसके ऊपर जो सेकेंड लेयर आएगी आपकी बेटा, वो किसकी आएगी? के पॉजिटिव आयन की आएगी, दिस वन. दिस इज सेकेंड सेट टू बी द, यू कैन से ये फिक्स लेयर है, दिस इज सेट टू बी डिफ्यूज्ड लेयर. फिक्स लेयर किसकी होती है? इट इज ऑफ कॉमन आयन, कॉमन आयन फ्रॉम डिस्पर्जन मीडियम. जो कॉमन आयन था उसकी बनेगी फिक्स लेयर, सरफेस पर एब्जॉर्ब होगा, मूव नहीं कर सकता. और न्यूट्रल करने के लिए जो आपका आयन बचा, देखिए हमारा डिस्पर्जन मीडियम क्या था? के आई. के आई में से आई नेगेटिव तो आ गया, तो के पॉजिटिव बच गया, वो इस लेयर के ऊपर क्या करेगा? अगेन एक लेयर बनाएगा, एंड दैट इज सेट टू बी द डिफ्यूज लेयर. क्यों? बिकॉज उसमें आयंस आपके मूव कर सकते हैं. सो डिफ्यूज लेयर इज द layer of ions left other than common ion in dispersion medium. तो ये आपकी दो लेयर बनी, फिक्स लेयर एंड डिफ्यूज लेयर. दीज लेयर आर सेट टू बी हेल्महोल्ट्ज डबल लेयर. एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो हेल्महोल्ट्ज डबल लेयर क्या है? इट इज द टू लेयर्स. लेयर नंबर 1 is of the common ion from dispersion medium. On it there is a layer number 2. It contains the ions left in the dispersion medium other than common ion. ठीक है, तो ये जो आपका डबल लेयर आपने बनाया, किसके ऊपर बनाया? डबल लेयर ऑन द कोलाइडल पार्टिकल. दिस इज सेट टू बी द हेल्महोल्ट्ज डबल लेयर. नाउ अभी हमें फाइंड आउट करना है कि हेल्महोल्ट्ज डबल लेयर में आप फाइंड आउट कैसे करोगे, कौन क्या है? तो सबसे सिंपल है, देखिए अब इसी एग्जांपल को एक शॉर्ट वे से देखते हैं. आपका कोलाइडल पार्टिकल क्या था बेटा? AgI. ये कोलाइडल पार्टिकल विच इज योर डिस्पर्जन मीडियम, KI इज योर डिस्पर्जन मीडियम. तो जो फर्स्ट लेयर बनेगी बेटा, फर्स्ट लेयर किसकी बनेगी? कॉमन आयन, सीधा कॉमन आयन. आई नेगेटिव एंड आई नेगेटिव कॉमन आयन है, तो फर्स्ट लेयर किसकी बनी? आई नेगेटिव की बनी. इसकी वजह से आपके कोलाइडल पार्टिकल को क्या मिलता है? चार्ज. एंड द सेकेंड लेयर, देखिए आई नेगेटिव के बाद क्या बचा? के पॉजिटिव. सो दिस के पॉजिटिव विल फॉर्म द सेकेंड लेयर, एंड दीज टू लेयर्स आर सेट टू बी हेल्महोल्ट्ज डबल लेयर. तो एक क्वेश्चन कई बार आता है कि टेल मी कि फर्स्ट लेयर में कौन सा आयन होगा, सेकंड में कौन सा. तो ध्यान रखिए फर्स्ट लेयर तो कॉमन आयन है और सेकंड लेयर बचा हुआ आयन है. कॉमन आयन हमने बहुत डिटेल में अभी किया था. क्लियर? नाउ दिस हेल्महोल्ट्ज डबल लेयर इज क्लियर. द सेकंड पार्ट वी विल डिस्कस इज जीटा पोटेंशियल और इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल. सो ये थोड़ा डायग्रामेटिकली यहां से करते हैं इसको, जस्ट सी आउट. इसी में स्टडी करते हैं. कोलाइडल पार्टिकल इज AgI. इसके ऊपर फर्स्ट लेयर आई बेटा आई नेगेटिव की, आई नेगेटिव फर्स्ट लेयर. लेयर नंबर 1 फर्स्ट लेयर, आई सिंपली राइट हेयर फर्स्ट लेयर. और जो सेकेंड लेयर आई दैट इज ऑफ के पॉजिटिव. ये आपकी कौन सी लेयर है? दिस इज योर सेकेंड लेयर. तो बेटा सेकेंड और फर्स्ट लेयर के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, द पोटेंशियल, आई विल राइट सिंपली हियर जीटा पोटेंशियल और इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल, इट इज द डिफरेंस इन द पोटेंशियल बिटवीन फर्स्ट एंड second layer, that is said to be the electrokinetic potential or zeta potential. So beta this is the complete article that we have done. हमने स्टार्ट किया था चार्ज से, we have got how to find out the charge, then we have got this one Helmholtz double layer, or in the last we have done electrokinetic or zeta potential. So this is all about the article, that's all.